we have different kind of operating system like Windows, Linux, and there are many operating system are available in a market. Operating system vary greatly in their makeup internally. So they vary makeup internally the way they are made different, but they have some common things among them. So we will discuss the commonality. ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं इंटरनली दे आर मेड डिफरेंटली, बट मोस्टली कई चीज़ें जो हैं इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कॉमन्स हैं. तो इसमें हम जो है कॉमन जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर. तो 2 थिंग्स एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ डूइंग: मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग. हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर ये कॉमन चीज़ें होंगी: मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग जो है दैट इज़ कॉमन फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इंटरनली दे आर मेक डिफरेंट. सो आज हम सबसे पहले हम मल्टी प्रोग्रामिंग को देखते हैं. मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग आज सिंगल यूज़र कैन नॉट in general keep either the CPU or IO devices busy at all the time. So multi-programming name itself to understand multi-programming capability of running a multiple programs simultaneously or at the same time. It's mean you can run multiple program on same time. So multi-programming itself इसका name जो है वो आपको indicate कर रहा है कि multiple program can run. So if you have not a multi programming, अगर single user environment है तो what happen is that the single user will not keep the CPU or IO devices all the time busy. If you are using a system using a single user system, so that is not possible to keep the CPU and IO devices busy at all the time. So when single user want to execute a task, until this task has been completed, no other user can use a CPU. So single user environment के अंदर अगर एक यूज़र जो है वो टास्क परफॉर्म करता है, वो उस टाइम तक जो है CPU को जो है रिलीज़ या फ्री नहीं करेगा जब तक कि उसका टास्क जो है वो कंप्लीट ना आ जाए, बिकॉज दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. So multi-programming, what we are trying to do, we are trying to increase the CPU utilization. So multi-programming increase the CPU utilization by organizing a jobs mean code and data, so that the program CPU always has one to execute. It's mean कि जो है CPU जो है that can never sit idle in multi-programming environment. The CPU utilization go to increase. So कैसे how multi-programming works हम इसको देखते हैं. Let's look how it works. तो ये हमारे पास जो है ये डायग्राम है. We have a job pool. ये हमारे पास job pool है और that is the memory layout of multi-programming environment. ये एक मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर मेमोरी का जो है लेआउट है जिसमें मल्टी प्रोग्राम्स और मल्टी जॉब जो है दैट आर लोडेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब. ये जॉब क्या है? बेसिकली जॉब इज़ ए समथिंग विल एग्जीक्यूट, इट कंटेन डाटा एंड कोड. सो here is we have all the job in a system, so that is a job pool. Here we all the job which will execute we will keep in the job pool. So the job which is required to execute will be loaded into the system in a job pool, और वो job pool के अंदर जो है वो jobs will be loaded. So here we have the layout of multi programming system. At the top there are operating system. टॉप पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहा होगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव द अनलिमिटेड मेमोरी. जैसे आपको पता है रैम जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती, मेमोरी इज़ ए लिमिटेड. सो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 512 MB की जो है वो आपके पास मेमोरी है, रैम अवेलेबल है. सो हेयर वी हैव 512 मेमोरी.
सो वी कैन नॉट लोड द ऑल जॉब्स, ये जो जॉब पूल्स में जितनी भी जॉब्स हैं ये सब हम इनको मेमोरी के अंदर लोड नहीं कर सकते बिकॉज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द मेमोरी. सो सबसेट ऑफ जॉब्स या सम few jobs will be loaded into the main memory. So we have job 1, job 2, job 3 and job 4 loaded into the memory. So operating system helps to execute job assigning a CPU among this job. ये जो जॉब्स लोड हैं जॉब 1 2 3 4, तो CPU जो है वो इनके दरमियान में टाइम जो है वो CPU जो है वो टाइम एलोकेट करके इन जॉब्स को वन बाय वन CPU एलोकेट करेगा. इफ़ वी डू नॉट हैव द मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर सपोज ये मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम विल एग्जीक्यूट जॉब 1 अनटिल जॉब 1 जब तक कंप्लीट ना हो जाए उस टाइम तक जॉब 2 जो है वो CPU को जो है वो असाइन नहीं होगा. सो कम्प्लीटली जब तक कंप्लीट ना, लेट्स से जॉब 1 एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, अगर ये मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जॉब 1 जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन उसको इट्स नीड सम अदर रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल इस जॉब की एग्जीक्यूशन जॉब 1 की एग्जीक्यूशन के दौरान इसको कुछ और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ गई जैसे IO डिवाइसेस. सो नाउ जॉब 1 हैज़ टू गो टू यूज़ IO devices. CPU is not utilized and sit idle. if non multi programming environment हो तो जॉब 1 को अगर IO devices की ज़रूरत पड़ी तो ये IO devices को यूटिलाइज करने के लिए दैट IO devices वो IO devices यूज़ करने के लिए वहाँ पे गया ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस जॉब. सो CPU विल सिट आइडल, CPU जो है वो फारिग हो जाएगा वो until they not perform any task. बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग नो, अगर आप जॉब 1 जो है वो एग्जीक्यूटिंग डोर इट्स कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन इट्स नीड सम अदर IO डिवाइसेस. जॉब 1 gone to the IO devices and job 1 is release the CPU and CPU remain idle. CPU does not remain the idle. The CPU is assigned to the job 2. अगर जॉब 2 को CPU रिक्वायर्ड है इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के अंदर, जॉब 1 जब IO डिवाइसेस के IO डिवाइसेस यूटिलाइज़ करने के लिए गया तो इसने CPU को रिलीज़ किया. जैसे इसने CPU को रिलीज़ किया तो CPU जो कि जॉब 2 को रिक्वायर्ड था CPU 2 जो है वो जॉब 2 को जो है वो एलोकेट कर दिया गया. सो और इसी तरह जब जॉब 2 जो है उसको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी तो उसने वो रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करने के लिए जैसे ही CPU को रिलीज़ किया एंड देन CPU विल एलोकेट टू द एन अदर जॉब अनटिल के अनलेस जब तक के जॉब 1 जो है उसको दोबारा CPU की ज़रूरत पड़ेगी देन दैट इट विल कम बैक अगेन आफ्टर यूटिलाइजिंग द IO डिवाइसेस द CPU विल रिटर्न बैक टू द जॉब 1. वी कैन आल्सो रिलेट मल्टी प्रोग्रामिंग ओवर डे टू डे लाइफ. ये जो हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग की जो एग्जांपल है जो इम्प्लीमेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको हम डे टू डे लाइफ के ज़रिए भी इसको देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में अगर आप देखें कि एक लायर जो है दे आर सर्विंग अ डिफरेंट क्लाइंट्स. एक लायर जो है वकील जो है वो डिफरेंट जो है क्लाइंट्स को देख रहा होता है. लायर्स आर नॉट टेकिंग ए सिंगल क्लाइंट एट पर्टिकुलर टाइम. एक वक्त में जो है वो एक जो है क्लाइंट को नहीं देख रहा होता. लेट्स से सपोज ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ वन क्लाइंट when that client is waiting going on the trial or waiting his lawyer paper work is done. suppose अगर एक लायर जो है वो एक क्लाइंट को देख रहा है तो क्लाइंट का हो सकता है कि अभी केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा हो या उसका कोई पेपर वर्क जो है वो पेंडिंग है और वो कंप्लीट होना हो. ड्यूरिंग दिस टाइम लायर जो है वो किसी दूसरे क्लाइंट का जो है कम टास्क या जॉब जो है वो कंप्लीट करेगा. इट्स मीन कि इन द सेम टाइम जो है दे आर सर्विंग ए मल्टीपल क्लाइंट. सो तो इसका मतलब है कि ही शुड टेक केयर ऑफ अदर क्लाइंट अंडर हिम, यानी कि उसके अंदर उसके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर मैनेजिंग द टाइम बिटवीन द
multiple clients. So he utilize his time and resources efficiently. So that a way we doing in a multi programming. यही concept या example को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इन द सेम वे मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर वो जॉब्स जो है वो मैनेज कर रहा होता है, और इन द टाइम वो रिसोर्सेज जब ज़रूरत पड़ती हैं तो एक जॉब जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो किसी दूसरी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने जाता है, तो इन द मीन वाइल जब CPU जो है वो प्रोसेसर जो है वो दूसरे जॉब्स को असाइन कर दिया जाता है अनटिल के जॉब वन अपना टास्क या रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करने के बाद वापस दोबारा CPU की रिक्वेस्ट नहीं करता। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोवाइड एन environment in which the various system resources, for example CPU, memory and peripheral devices are utilized effectively. That is multi-programming, but they do not provide the for user interaction with the computer system. मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़र की इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। CPU जो है दैट आर इंटरनली मैनेज द effective use of resources, utilization of resources. So interaction of user are not involved, interaction user की नहीं होती मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर जी। अब हम देखते हैं टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। तो लेट्स सी मल्टीटास्किंग हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मल्टी प्रोग्रामिंग। तो CPU execute multiple job by switching among them। इसमें क्या होता है जी कि जो है मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो उनके दरमियान में CPU जो है वो स्विच करता है। तो बट इट लुक्स लाइक अ मल्टी प्रोग्रामिंग CPU एग्जीक्यूट बट मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमॉन्ग देम, यानी कि यहाँ पे जो है CPU जो है प्रोसेसर जो है दैट आर स्विचिंग अमॉन्ग द डिफरेंट जॉब्स। फील इसी तरह ही होता है जिस तरह मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह है, बट थोड़ा डिफरेंट है, वो हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट है। व्हेन स्विचिंग हैपन, स्विचेस occur so frequently that user can interact with each program while it is running. That is the main difference जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं था। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़र इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बट देयर इज यूज़र कैन इंटरेक्ट while switching take place among the different user. So when switching happen it happens so quickly that user can interact with each program while it is running, but not happen in multi programming. This switching happens so quickly, but that interaction is not possible in multi programming. Time sharing requires an interactive computer system which provides the direct communication between user and system. So टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर जो है वो इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है यूज़र और सिस्टम के दरमियान में, और कंप्यूटर जो है वो दे आर यूजिंग डिफरेंट यूज़र। टाइम शेयर सिस्टम अलाउ मैनी यूज़र टू शेयर द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। जी, ये हम देखते हैं कि कैसे जो है कंप्यूटर जो है मल्टीपल यूज़र के दरमियान में शेयर हो रहा है। लेट्स से ये हमारे पास A time share system allow many user to share the computer simultaneously। इसको हम देखते हैं। There is a time share system. We have time share system and 4 user 1, user 2, user 3, user 4. In this time sharing, switching take place so quickly, user themselves realize that they are sharing the system. They feel that they are sharing a system। उनको रियलाइज ही नहीं होता इतना क्विकली है। दे फील दैट द एंटायर सिस्टम बिलोंग टू वन यूज़र बाय स्विचिंग टेक प्लेस सो क्विकली। यूज़र 1 जो है दे फील दैट दे आर यूजिंग देयर ओन सिस्टम। यूज़र 2 इज़ आल्सो, बिकॉज टाइम शेयर सिस्टम इज़ फ्रीक्वेंटली स्विचिंग अमॉन्ग दैट यूज़र्स। इनके दरमियान में जो है वो स्विचिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र वांट टू एग्जीक्यूट हिज जॉब। यूज़र 1 जो है द एंटायर सिस्टम बिलोंग टू मी, दे आर फीलिंग every user feeling that the entire system belong to me. Suppose user want to execute his job execution take place at CPU speed। जॉब की जो एग्जीक्यूशन है वो CPU की स्पीड पर जो है वो कंप्लीट होगा,
We know that CPU speed is very high. After the execution of job, system has shown some output to the user 1. The user give the some other input to the system. अब जब उसकी जो आउटपुट वो उसने सेंड किया तो यूज़र कुछ और इनपुट करना चाह रहा है सिस्टम को, तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब जो है वो आउटपुट शो कर दी, यूज़र वांट टू सब अदर इनपुट, इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम टेक प्लेस एट यूज़र स्पीड और पीपल स्पीड। इस यूज़र और टाइम शेयरिंग सिस्टम के दरमियान में जो इंटरेक्शन हो रही है वो यूज़र की स्पीड पे हो रही है, क्योंकि यूज़र जो है वो इनपुट कर रहा है। We know that CPU speed is much higher as compared to human speed. CPU की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है as human speed. So he is inputting a normal human speed. User 1 जो normal human speed पे input कर रहा है. While he is inputting in a system, the time gap CPU can टाइम गैप जनरेट हो गया, क्योंकि CPU जो है वो यूज़र जो है वो एंटर कर रहा है, वो नॉर्मल स्पीड में एंटर कर रहा है, CPU की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है। सो टाइम गैप आ गया जब वो सिस्टम यूज़र 1 जो है इनपुटिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग ए जॉब फ्रॉम यूज़र 2। सो वो टाइम गैप जिसके अंदर यूज़र अभी इनपुट कर रहा है, CPU की स्पीड ज़्यादा है, दैट विल स्विच इन दैट टाइम गैप टू द यूज़र 2। तो टाइम सिस्टम जो है CPU जो है वो स्विच कर देगा यूज़र 2 को। सो इन दैट वे वी सी दैट देयर इज टाइम गैप बिटवीन द यूज़र एंड सिस्टम। सो इन दैट टाइम गैप switching take place so quickly and fast and so frequently, user cannot realize that the time sharing system that are using a time sharing system that feel that entire system belong to him. So that time gap system जो है, क्योंकि इन ह्यूमन जो है वो नॉर्मल स्पीड पे इनपुट कर रहा है और जो प्रोसेसर है दे आर वेरी फास्ट। सो वो जो टाइम गैप जनरेट हो रहा है दे आर स्विचिंग अमंग देम। So she uses the CPU scheduling and multi-programming provide each user with small portion of time shared computer system. So that system allocating a small portion of time among that users. Each user had at least one separate program in a memory. हर यूज़र का एक प्रोग्राम जो है that is in a memory. The program loaded into the memory and executing is called process. So process is a program which is in running state, that is known as process. So there is a difference between multi-programming and time sharing or multitasking system. So इस वीडियो में हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, दोनों जो है टॉपिक्स थे, इनके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया और इनके